اچھا جی، اب یہ آپ نے پہلا سپارہ آپ کا مکمل ہو گیا تھا، اور آج اب آپ کی آیت نمبر 142 ہے، تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں اس کا۔ یہ آپ کے سامنے آیت کھل گئی ہے۔ اس سے پہلے جو والی آخری آیت ہے پہلے پارے کی، وہ آپ نے پڑھی تھی کہ دل کا امت ان کا خلط دہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ پہلی امت گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، جو تمہارے لیے تم کماؤ گے، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ کافر اور مشرک اسی حالت میں فوت ہو گئے، لیکن بعد میں اولاد جو ہے ایماندار بن گئی، تو پہلے والوں کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ ہے سیقول السفہاء، یہ نا تحویل قبلہ کی آیات ہے۔ تو تحویل قبلہ آپ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ پہلے اصل میں قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے نا ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ سبا کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے، وہاں پر آپ کی موت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ اچھا، تو وہ نا اس وقت بنی اسرائیل اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو وہ قبلہ جو ہے انہوں نے خود ہی اس کو بنا لیا کہ یہ قبلہ ہے۔ اور وہ تابوت جو جس کا دوسرے پارے میں ذکر موجود ہے، وہ بھی اس پہاڑی پر پڑا رہتا تھا۔ اس کو نا تورات کے لحاظ سے یا یہودی تاریخ کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں ہولی آف دی ہولیز۔ وہ جو ہیکل سلیمانی کا ہولی سے مراد ہے، سب سے زیادہ متبرک مقام، وہ کہلاتا ہے ہولی آف دی ہولیز۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ اب ساگر ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اس چیز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ اب تمام چیزیں جو ہے نا وہ اصل دین حنیف پر لائی جائیں۔ دین حنیف پہ لانے سے مراد ہے کہ اب قبلہ بھی وہی بنا لیا جائے جس قبلے کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پتا تعمیر کیا، پہلے پڑھ چکے۔ تو لہٰذا اب یہ وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس کو نا اسی حالت میں لایا جائے جس حالت میں وہ پہلے تھا، اور جس کی طرف لوگ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ واضح ہوگی نہیں بات؟ یس سر۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، اپنے مائک ذرا کریکٹ کر لے جی۔ اچھا، جی تو سر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سایقولو، یہ فعل مضارع سے پہلے سین لگ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں صرف مستقبل کا معنی ہے۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہ، کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم اللاتی، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پہ یہ پہلے تھے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 ماہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے اندر نماز پڑھی ہے، بیت المقدس مقدس کی طرف منہ کر کے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف حکم ہوا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے آپ نے ایک آیت پڑھی تھی نسخ والی، یاد ہے جی؟ یس سر۔ کیا مطلب ہے نسخ کا؟ مطلب ایک کام پہلے ایک چیز کا حکم دیا گیا، بعد میں اسی چیز کو منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، اب نسخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ نسخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی امت کو، اپنی یعنی کہ مخلوق کو آسانی میں ڈالنا چاہتا ہے کہ میں یہ کرتا تو میں اب آسانی سے کر۔ اس سے نا آپ کو بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ جب کلاس کے اندر ٹیچر 10 سوال دے اور تھوڑی دیر بعد اناؤنس کر دینا بیٹا 10 دیے تھے، چلے آپ 5 کر لیں، تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اس کے شروع سے 5 ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ یس سر، ایسا ہی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کلاس میں سوال کم ہونے سے یا چھٹی ہونے سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی حاضر، وہ اللہ بندوں کا خالق ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نص کر سکتا ہے، نص کر دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مناسب سمجھا کہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو لوگ پرانی عادات پہ ہوں ان کی عادات کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکمت ہے وہ آپ کو ایسا ایسا، یہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا سمجھ آ جائے گی کیا اس کی وجہ، قبلے کی تحویل سے فائدہ کیا ہوا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے وہاں پر مکہ میں، یعنی کہ عرب کے اندر وہ 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو آپ کو پتا یہودی تھے، اور دوسرے منافقین اور مشرک تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک طرف یہودی موجود ہیں
اور ایک طرف جو ہے وہ مشرکین اور منافقین موجود ہیں. اب وہ بھلا کہتے ہیں کہ اگر پہلا قبلہ درست ہے تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پہلا قبلہ درست ہے تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے دیکھیے کیا جواب دیا. فرمایا کل للہ المشرق والمغرب. فرمایا کہ اب یہ جو آپ یہاں پر پہلے سمجھ لیجیے، جو آپ کے نا تفسیر القرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نا امتحان ہے. ہر قوم کو نا یہ دیکھیے لکھا ہوا اپنے شاعر سے عقیدت ہوتی ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرقین مکہ میں سے ہوتے تھے اس لیے ان کا امتحان تھا کہ وہ اپنے کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے. تو اللہ نے اس طرح امتحان لیا ان کا. پہلے بیت المقدس کو قبلہ رکھا تاکہ مشرقین جو ایمان لے آئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اگرچہ کعبے سے محبت کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیت المقدس سے منہ کا نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. اور بیت المقدس سے چینج کرنے کا حکمت یہ تھی کہ اب یہودیوں کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ جو اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان کی تسلیم کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے مطلب سب سے بڑے پیٹریارک ہیں، سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں یا رسول ہیں، ان کا بھی امتحان تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. فرمایا مشرق مغرب کس کی ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. واٹ از دا میننگ آف ڈائریکشن؟ ڈائریکشن تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھ دی کہ ہماری فطرت کے اندر شامل ہے کہ ہم چونکہ مادیت پرست ہیں، ہمارے اندر میٹیریل موجود ہے، ہم میٹیریل کو دیکھنا چاہتے ہیں، میٹیریل سے ہم متاثر ہوتے ہیں، خوبصورتی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، حسن ہمیں آ جاتا ہے، اور خوشبو جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اچھی چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے. صرف اس وجہ سے کہ ہم میٹیریلسٹک ہیں بائی اپروچ. تو اس لیے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کسی نہ کسی ڈائریکشن کی ضرورت تھی کہ ہم اس میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، یہ ساری مشرق اور مغرب تو اللہ کی ہے. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. اللہ نے پھر یہ بھی قرآن میں فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اللہ تعالیٰ کی نے جانے کتنی مشرقیں ہیں اور کتنی مغربیں ہیں. آپ کو پتہ ہے سائنس اپنی پوری کوشش کے باوجود نہ زمین کی حد کو ماپ سکی ہے، نہ آسمان کو تلاش کر سکی ہے، اور نہ گلیکسیز کے بارے میں جانتی ہے، نہ کومیٹس کے بارے میں جانتی ہے، نہ ہیونلی باڈیز کے بارے میں جانتی ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا علم محدود ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہر وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وقت کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، the universe is expanding. اور اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں جس طرح قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انا لموسیون، کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور ہم بے شک ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، جتنے مرضی زندے ہوں جتنے مرضی مردے ہوں سب کے لیے دیکھیے زمین وہی ہے لیکن کافی ہے. اور یہ زمین کیسے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کس طرح اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح شہروں کے شہر بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی آپ مسجد نبوی کو دیکھ لیں، 100 سال پہلے مسجد نبوی کا نقشہ نکال کے آج کے نقشے سے موازنہ کر لیں، بتائیے کیا فرق محسوس ہوگا. سب پہلے بہت زیادہ چینجز آ گئی ہے، ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے مسجد نبوی کی. تو ایکسٹینشن ہوتی جا رہی ہے. اب حیران ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو چھوٹی سی کھجور والی مسجد بالکل چھوٹی سی، اور زیادہ 40-50 بندوں کے لیے ہوگی. اب کیسے ایکسپینشن ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. فرمایا اللہ کی مشرق اور مغرب ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے، اصل بات یہ ہے. اللہ. اور فرمایا اچھا یہاں پر آپ چونکہ کچھ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ کس چیز کی ویلیو ہے. اب دیکھیے میرا جسم بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تبھی خوبصورت ہے تب تک جب تک اس میں روح موجود ہے. ہاں جی، ایگری جی. ایسے ہی ہے. یس سر. روح گئی تو اداکار کو کوئی آدمی ڈرامہ نہیں دے گا، گلوکار کو کوئی آدمی گانا نہیں دے گا، کرکٹر کو کوئی آدمی میچ نہیں کھلائے گا، وہ کہیں چوک کے لے جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں رہا. آپ بتائیے اس کے کان ختم ہو گئے ہیں، آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، یا ناک کان ختم ہو گئے، بتائیے وہ تو موجود ہیں، تو ختم کیا ہوا ہے؟ روح ختم ہو گیا سر روح اس سر. وجہ سے. ہاں اصل چیز روح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نا شاعر اللہ کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں شاعر اللہ والا کیا بنا لیے گئے کہ ہاتھ لگاؤ اور منہ پہ مان لو، جسم میں مان لو، بس برکت ہی برکت ہوگی. کیا ہی بات ہے. حالانکہ شاعر اللہ اس طرح نہیں ہے. کسی پرانی بوٹل کے اندر آپ کو بڑی زبردست دوائی ڈال دی جائے
तो आपको पी लेनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि इंतहाई खूबसूरत बोतल के अंदर आपको जहर डाल के दे दिया जाए। बताइए, एग्री? यस सर। जी सर। अब मसला कहने का ये है कि हम जनाब वो हजर असवद के पास जाते हैं तो उसको सेल्फियां खींच रहा है, कोई कह रहा है पास मैं एथिकल होता है, मैं तवाफ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ये वो इबादत की रूह नहीं है। इबादत तो ये है कि आदमी गुमनाम से जाए, किसी को पता भी ना चले, उम्रा करके वापस आ जाए। बताइए, हमारे उम्र इस तरह के हैं? नो सर। नो सर। किस लिए वाला? हम ना एक्सपोज करना चाहते हैं अपने आप को और मेटीरियलिस्टिक अप्रोच की। अल्लाह फरमाता है ये क्या चक्कर है, इधर करना है उधर करना है। असल में इस्लाम वाला वो है जो ये नहीं देखता इधर करना है उधर करना, वो कहता है अल्लाह का हुक्म किया है, जिधर अल्लाह कहेगा मैं उधर कर दूंगा। और ये बात पता है आपको, अल्लाह ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई है, फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। ख्वाब में देखा मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बेटे से जाकर कहा, तो अल्लाह फरमाता दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये हुक्म क्या है, दोनों ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के हुक्म को देखना है, हिकमत वगैरह को नहीं देखनी आपने। और शैतान क्या था? शैतान ने अल्लाह के हुक्म के सामने कियास किया है, अपनी अकल को इस्तेमाल किया है। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, कहने लगा मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं इसको सजदा क्यों करूं? ये भूल गया कि अल्लाह ताला का हुक्म ही असल हिकमत है। और जब अल्लाह हुक्म दे दे तो हिकमत खत्म है, अल्लाह का हुक्म बजाते खुद हिकमत है। तो फिर मैं अल्लाह ताला की मशरिक और मगरिब है, तुम्हारा काम ये बनता था कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म को मान लेते। अगर तुम काबे को अपना सब कुछ समझते हो तो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करने में कोई हर्ज नहीं था। और अब अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को क्लोज करके काबे को बना दिया है, तो यहूदियों को कोई मुतालबा खत्म नहीं हो जाता। यहूदियों को चाहिए कि अल्लाह ताला की बात माने। तो लिहाजा इससे क्या हुआ, इससे अल्लाह ताला ने एक छलनी के जरिए मुनाफिकीन को भी अलहदा कर दिया, जिनके दिल में मरज है वो भी अलहदा हो गए, ये छोटी सी बात पर। तो अल्लाह फरमाता है कि इसलिए इनको अल्लाह ने बेवकूफ करार दिया है। फरमाया यहदी मन यशाउ, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। और ये भी आप याद रखिए, अल्लाह ताला किसको चाहता है कि यहाँ सिर्फ मैया शाह के लफ्ज आए, इसका ये नहीं मतलब है कि आपका इख्तियार नहीं है या आपका इरादा नहीं है, आपका इख्तियार बाकी है। सिर्फ मैया शाह का लफ्ज आता है, इसका मतलब है अल्लाह ने दूसरी जगह मैया शाह को वादे कर दिया। फरमाया यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह अपनी तरफ बुला लेता है जिसको, उसको जो अल्लाह की तरफ आना चाहता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और मैं जो लोग मेरे लिए कोशिश करते हैं तो मैं उनको अपनी तरफ बुला लेता हूँ और मैं उनके रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर देता हूँ। और मैं किस तरफ हिदायत देता हूँ? इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। और सीधा रास्ता अकली तौर पर भी आपको पसंद होता है, और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आप कपड़े इस्त्री क्यों करते हैं? जी, सलवटी खत्म करने के लिए। वो सलवटे है ना, तो आपको बुरा, कपड़ा तो वही है, तो सलवटे नहीं होनी चाहिए। और आप कहते हैं ऐसे क्रीज बनी हो बिल्कुल सीधी, और जब वो इसलिए आप उसको फेरते हैं तो बिल्कुल जब प्लेन हो जाता है ना कपड़ा, तो आप कहते हैं कपड़ा खूबसूरत लगता है। तो सिराते मुस्तकीम हमारे अंदर कुदरती तौर पे शामिल है। सिर्फ ये है कि हमने गलती से उसको ना मेरीरियल अप्रोच पे तो अप्लाई कर लिया है। जब दीनी की बात आती है ना तो हम पे सिराते या जैग यानी कि टेढ़े रास्तों को तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वालल्लाहि कसदुस सबील व मिनहा जाहिर, फरमाया अल्लाह ताला के जिम्मे रास्ता दिखाना है, और बाद रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जाना ईमानदार का काम नहीं है। ईमानदार का काम है सीधे रास्ते पर चलना। और सीधे रास्ते का फायदा वाला क्या है कि दूर भी आपको ना मंजिल नजर आती है। ये आपको मानना पड़ेगा, जिगजैग रास्ते में मैं और आप खड़े हों तो एक वक्त आएगा कि आप मुझे और मैं आपको नहीं देख पाएंगे। एग्री जी? यस सर, एग्री। और अगर आप सिराते मुस्तकीम पर खड़े हुए हैं तो मैं आपसे जितना मर्जी दूर चला जाऊं तो आप दूसरी नुक्कड़ से मुझे देख सुन रहे होंगे, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान सिराते मुस्तकीम है। और सिराते मुस्तकीम पे आदमी ओझल नहीं होता, स्पीड कम हो सकती है लेकिन वो इंशाल्लाह जन्नत में पहुंच जाएगा। आगे फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने तुम्हें बना दिया उम्मतन वसतन, दरमियानी उम्मत। अब दरमियानी उम्मत से क्या मुराद है? वसतन, वसतन एक तो आपकी ना, आप उंगलियां देखिए अपनी, आपकी जो उंगलियां हैं अंगूठा, इसको अरबी में इबहाम कहते हैं। वह छोटी से शुरू होता है, छोटी उंगली को खिंसर कहते हैं, उसके साथ वाली को बिनसर कहते हैं, और दरमियान वाली को वुस्ता। और जिससे आप इशारा करते हैं नमाज में, उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको कहते हैं सबाबा। और अंगूठे को कहते हैं इबहाम। खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबहाम। अब आप अपने हाथों को देख के बताइए वुस्ता कौन सी उंगली है? थर्ड उंगली। दरमियान वाली, बिल्कुल। और आपको पता है दरमियान वाली चीज अक्सर जो है ना वो बेहतर होती है, कि आदमी दरमियान में है, ना इधर है ना उधर है। आप अपनी उम्र देख लें, उम्र के लिहाज से आपको पता है जब आप बच्चे थे वो भी उम्र ठीक नहीं थी, आप कहते मैं बेवकूफियां करती थी या करता था।
जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी बेवकूफियां होंगी। तो उम्र सबसे अच्छी कौन सी है जी? दरमियानी। दरमियान वाली। इस तरह आप देखिए, जिन्होंने दरमियान वाली उम्र अल्लाह ताला के लिए यूज की और अल्लाह ताला की खातिर वक्फ कर दी, तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान के बिल्कुल दरमियान में उसका जिक्र किया है सूरह कहफ में। सूरह कहफ उन बच्चों के बारे में, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो आपको पता है कुरान मजीद का बिल्कुल वसत हिस्सा जो है ना वो सूरह कहफ है। और सूरह कहफ में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपनी जिंदगी के वसत हिस्से को अल्लाह के लिए वक्फ किया था। आज का नौजवान क्या कर रहा है? टाइम बर्बाद कर रहा है सर। बस वो देखते जाए खुद ही। तो फरमाया हमने आपको ना उम्मत वसत बनाया है, इसमें इफरात और तफरीत नहीं है। इफरात का मतलब क्या है? नाउज़ुबिल्लाह नबियों को, ये नहीं कि वो जो है ना तफरीत। इफरात का मतलब है नबियों को अल्लाह का बेटा ही बना देना, तो बस ये अल्लाह ईसा अल्लाह का बेटा है, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये इफरात है। और तफरीत क्या है? तफरीत है कि बिल्कुल ही जनाब जी नबियों को नाउज़ुबिल्लाह कुछ भी ना समझना, कि नबी दे नाउज़ुबिल्लाह सच्चे होते ही नहीं है, नबी ठीक नहीं होते, नबी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, चलो नबियों को कत्ल कर दो, यहाँ तक भी नौबत पहुंची। तो ये उम्मत में ना इफरात है ना तफरीत है। आपको पता है नसारा ईसाइयों में इफरात है, उन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया। और यहूदियों में तफरीत है कि उन्होंने नबियों को कत्ल भी किया हुआ है। हमें क्या बताया? हमें उम्मत वसतन बताया है कि हम ना तो किसी नबी को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ना किसी नबी की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करते हैं। एग्री जी? यस सर। हाँ। यस सर। और आप अपनी उंगलियों को जरूर याद रखिएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी दरमियान वाली उंगली का फासला बाकी दोनों उंगलियों से बराबर है, और जो आपकी छोटी उंगली है उसका फासला आपके अंगूठे से काफी ज्यादा है, वो एक तरफ को चली गई है, अंगूठा भी एक तरफ को चला गया है। सबसे बेस्ट उंगली आपकी दरमियान वाली है, वो दोनों तरफ से बराबर फासले पर है। और यही उम्मत वसत है। कि ये उम्मत क्या है? ये लितकूनु शुहदा अलन्नासी, ताकि ये लोगों पर गवाह बने। और लोग कौन है? यहूदी, ईसाई, सिख, मजूसी, हिंदू, लोगों पे गवाह बने। और लोगों की गवाही ये भी कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के जो है ना चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास वो बयान करते हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फरमाया कि तुम उफातन उरातन गुरलन, अल्लाह ताला के सामने नंगे पैर, नंगे बदन और बगैर सरकमसाइज हुए, बगैर यानी कि खतना हुए अल्लाह के सामने जमा किए जाओगे। और मेरी उम्मत को कुछ लोगों को बाएं तरफ ले जाया जाएगा। तो मैं कहूंगा ये कौन है? ये तो मेरे साथी हैं। तो वो कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके पास क्या पैगाम, आपके दीन को किस तरह तब्दील कर दिया था। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस ये बुखारी में मौजूद है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा तो वो भला क्या कहेगी? वो कहेगी नूह अलैहिस्सलाम तो हमारी तरफ आया ही नहीं। अब बताइए इसका क्या जवाब है? सर उस पे हम लोग गवाही देंगे कि आई थी, कुरान ने कहा था कि वो आए थे उनकी हाँ जी तरफ। माशाल्लाह, इस पे ना आप खड़े होंगे और आप को बारे में कहा जाएगा जी आप तो थे ही नहीं, तो आप कहेंगे हमें अल्लाह ने कुरान में बताया कि नूह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। ये भी इसके अंदर माना मौजूद है ताकि तुम लोगों पे गवाह हो जाओ। और लोगों पे गवाह होने का एक माना ये भी है, असल दीन किसके पास है? जिस तरह आप किसी मार्केट में जाएं तो आप कहते हैं जी फलानी दुकान पे जाना है, वो माशाल्लाह ना नेक भी है, बोलता भी सही है, बाकी सारे दुकान नहीं, नहीं मैं उधर नहीं जाना। तो इसका मतलब है वो एक उम्मत मौजूद है। और वो उम्मत कब तक मौजूद है, कब तक बेहतर रहेगी? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब तक नेकी का हुक्म देती रहेगी बुराई से रोकती रहेगी। फरमाया व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही दे। और रसूल की गवाही, अल्लाह क़यामत वाले दिन आपको पता है रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। और वो जब ये आयत पड़ेगी तो आप रोने लग पड़े। सूरह निसा की आयत है, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। फरमाया हर उम्मत का नबी खड़ा किया जाएगा गवाही के तौर पर, आपको आपकी उम्मत पे गवाह बनाया जाएगा। अब आप बताइए नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हों और हमारे अमाल क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी के सामने पेश हुए हों, हो रहे हों, और ये कहा जा रहा हो कि आपने सूद से मना किया था, ये सूद खाते रहे, आपने कुरान पढ़ने का कहा था और ये कहा था कि मुल्क का कानून, रियासत का कानून कानून कुरान के मुताबिक बनाना, ये तो कुरान भी नजदीक भी नहीं लगते थे। आपने कहा था शादी ब्याह के बारे में, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसमें से होगा। ये तो इनकी शादियां जो हैं वो पटाखों के बगैर, आतिशबाजियों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती।
बताइए अब क्या मेरा और आपका क्या हाल होगा जी क़यामत वाले दिन। सर शर्मिंदगी से हम लोग गिर रहे होंगे। और ये बात जरूर ज़हन में रख लें, क्योंकि मैं चूंकि मेरा मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ, वो ये है कि बफर्ज महाल नबी अलैहिस्सलाम आज यहाँ पाकिस्तान में आ जाएं तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? जी सर इस उम्मत से कोई बैद नहीं है। देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल सर है। पहले नबी सर दोबारा अलैहिस्सलाम, दोहराइएगा सर। मैं कह रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम सूद से मना करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम बेहयाई से मना करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम फहाशी से मना करेंगे, तो हमारी पार्लियामेंट, हमारी कौमी असम्बली ये बात तस्लीम कर लेगी? सवाल ये है। हालात तो ये बताते हैं कि नहीं करेगी आजकल के। इस पे दलील बता कि इस पे दलील वही मुनाफिकों वाली जिंदगी है जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इज युबय्यतूना, अल्लाह फरमाते हैं आपके सामने आते हैं तो क्या ही बात है, सदके जावा वारी जावा वारी जावा सदके जावा, इज युबय्यतूना, जब घर में जाके आपस में बातें करते कहते हैं इतने सारे ऐसे बस छठो परा जी इन्होंने अपनी मर्जी करो। और ये आप सूरह मुनाफिकीन के लफ्ज पढ़े, वो बड़े सख्त हैं। लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, मुनाफिक कहा करते थे कि अगर हमें मौका मिल गया तो हम इन नऊज़ुबिल्लाह जलील लोगों को मदीने से बाहर निकाल देंगे, हम मुअज़्ज़ज़ हैं, नऊज़ुबिल्लाह ये जलील लोग हैं, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो ये हमें ना बिन हैसुल मतलब नफ्स जो है ना, मुआशरे को फिलहाल छोड़ दें, हम सारे ऐसे काम करें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी के सामने हमें ना शर्मिंदा ना होना पड़े। हम कहें ये कोशिश हमने जरूर की है, कमजोर थे, नातवान थे, ज़ईफ थे, मुआशरे का तो मजबूर थे, या अल्लाह कि जहां जहां हमारा बस चला है हमने आपकी सुन्नत पर अमल किया है, क्योंकि कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। हाँ, इंशाल्लाह सर। जितनी आपकी ताकत है। देखिए, मैं एक ना क्लास में मिसाल दे रहा था कि अगर डाकू आ जाए ना किसी के घर में, तो हाँ, आदमी कुछ नहीं कर सकता, उन्हें 10 पिस्तौल पकड़े हुए, तो दिल में तो बुरा समझ सकता है ना डाकू के बारे में, ये तो दिल में रख सकता है या अल्लाह मौका दे मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, क्या ख्याल है, इतना तो सोच सकता है ना दिल में। यस सर। तो अगर वो ये भी सोचने से बाज आ जाएगी, मैंने ये भी नहीं सोचना कि डाकू मुझे पकड़ ना ले, फिर उसका क्या हाल होगा जी। अल्लाह अकबर। हमें ना आज कम से कम ये जरूर कहना है कि नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, आपका हर कौल सच्चा है, तो हमें ना रोजाना की बेस पर या कभी कभार ये जरूर दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाया सच है, हम गलत काम कर रहे हैं, हम अपनी गलती पर नाजिम हैं, शर्मिंदा हैं, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हमें माफ कर दें। कभी गलती को आपने जस्टिफाई नहीं करना। उम्मीद है कि अगर हम गलती को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। और मैं वमा जानल किबलत अल्लती कुन्ता अलैहा, और नहीं हमने बनाया उस किबले को जिस पे तू था, इल्ला लिनाअलमा, मगर ये कि हम जांच लें। अल्लाह ताला के बारे में जब ये लफ्ज है ना आलिमा का, इसका मतलब था जांचना परखना। क्या जांच लें? इल्ला लिनाअलमा, ताकि हम जांच लें, हम परख लें, हम एग्जाम कर लें। क्या एग्जाम कर लें? मैं यत्तबिउर रसूल, के नबी की पैरवी कौन करता है, और मिम्मन यनकलिबु अला अकीबैहि, और अपने पैरों पर एड़ियों पे कौन फिर जाता है। इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना। तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो बड़ी सिंपल है कि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं शनाख्त की वजह से, और किसी आइडेंटिटी के निशान की वजह से। अगर आपको मिक्स नोट दे दिए जाए तो आप लाल अलहदा कर देते हैं, नीले अलहदा कर देते हैं, ये 1000 के हैं, ये 500 के हैं, यानी कि 1000 के, ये 100 के हैं। बिल्कुल ऐसे ही कैसे पता चलता है ये अल्लाह का मुती फरमाबरदार है? जो नबी की इताअत करता है, इत्तबा करता है, वो नबी का अल्लाह का नाफरमाबरदार है, और जो नहीं वो अल्लाह का फरमाबरदार नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इधर पढ़ना है तो उधर पढ़ना शुरू कर दिया, और इसकी दलील है नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा। आपको पता है मशहूर वाकया, नबी अलैहिस्सलाम ने जूते पहन के नमाज पढ़ी। आपने जूता पहन के नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी पढ़नी शुरू कर दी पीछे, उन्होंने जूते पहने हुए थे। नमाज के दौरान नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपके जूते पर ना कोई ऐसी चीज लगी हुई है, तो आप इस जूते को उतार दीजिए। आपने जूता उतार दिया। अब देखिए, सहाबा ने नमाज में ही जूता उतार दिया, इससे क्या साबित होता है? रसूलुल्लाह सल्लम की पैरवी। हाँ, सर आपकी पैरवी, कि उन्होंने आपके बोलने का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा जी प्यारे नबी ने उतारा है तो इसका मतलब कोई शायद हमें भी हुक्म हो तो ला दो जी। तो ये है जी एक लिटमस टेस्ट जिससे पता चलता है ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। और फरमाया वइन कानत लकबीरतन, और ये बात बड़ी मुश्किल है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु, मगर उस पर जिसे अल्लाह हदायत दे दे।
अल्लाह ताला हदायत दे दे तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको हदायत दी हुई हो, अल्लाह ताला ने अपने यहदी लिनूरिही मन यशाउ, अल्लाह अपने नूर की तरफ हिदायत देता है जिसको चाहता है। उसका नूर सागर है, कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम में नाजिल फरमाया। और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना ये सिफत कि अल्लाह ताला ने आप पर कुरान मजीद को नाजिल फरमा के अंधेरों से आदमी को निकाला और रोशनी की तरफ ले गया। तो रोशनी क्या है? वो रोशनी अल्लाह ताला का दीन है। और फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और अल्लाह नहीं है कि तुम्हारे ईमान को जाया करे। तो यहाँ पर ईमानकुम ये ये इस्तेमाल हुआ है उन नमाजों के लिए जो 16-17 महीने पहले पढ़ी गई हैं। जो 16-17 महीने पहले नमाजें पढ़ी गई हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि वो नमाजें हम जाया करने वाले नहीं हैं, वो नमाजें कबूल हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारी नमाजों को जाया नहीं करेगा, और तुम्हारे वो जो नमाजें पढ़ी हुई हैं उसके समरात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाया नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मेरे हुक्म बताओ पढ़ी गई है। अब मैंने किबले को तब्दील का हुक्म दिया है, ये भी एक तुम्हारी आजमाइश है ताकि अल्लाह ताला खोटे और खरे को पहचान ले। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिन नासी, लोगों के साथ, लरऊफुर रहीम, बड़ा मशफक और बड़ा रहम करने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी समझ लें कि यहाँ अल्लाह ताला ने नमाज को ईमान करार दिया है, ये गौर कर लें। तो लिहाजा ईमान की क्या चीजें हैं जी? हमारे यहाँ ईमान के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो शायद मैं कोशिश करूंगा आसानी से आपकी दूर हो जाए। देखिए, एक है आपका दिल में ईमान लाना, कि दिल से मान लेना अल्लाह एक है। एक है जुबान से तस्दीक करना, और एक है कि आप अपने अमल से साबित कर दें। आप खुद बताइए कि खाली आदमी दिल से ईमान ले आए, जुबान से तस्दीक ना करे, तो ईमान वाला बन जाएगा? नो सर। नो सर। अच्छा, इससे अगला नहीं सर। स्टेप, आदमी दिल से भी मान ले आए और जुबान से भी कह दे, तो ईमान वाला बन जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं बनता। दलील उसकी सुन लें। अल्लाह फरमाता है वामिन अन्नासी मन यकूलु, लोगों में तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाए। यकूलु यानी कि वो कहेंगे, कह रहे हैं वो। अब कहना जुबान से ही होता है, क्या ख्याल है जी? जी सर। अच्छा, अल्लाह ताला ने रिजल्ट बताया उनका कि ये जुबान से कहने वाले कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले हैं ही नहीं। माँ के पास बाज़र भी आ जाए तो इसका मतलब होता है बिल्कुल टोटल नफी हो गई। मा हुम बिमुमिनीन, ये भी कुरान मजीद में है। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, ये भी कुरान मजीद में है। यानी कि है ईमान वाले हैं ही नहीं, बिल्कुल ईमान वाले नहीं। आप बताइए, जुबान से इकरार कर रहे हैं, ईमान वाले क्यों नहीं बने? क्योंकि सर उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया था और उसका पे अमल नहीं किया था जो उन्होंने कहा नहीं, था। दिल से तस्लीम भी किया हुआ था। आप दिल से तस्लीम वाली हदीस आयत भी सुन लें। अल्लाह फरमाता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, फरमाया ये आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटे को पहचानते हैं। फिर फरमाया कि ये लोग जो अहले किताब हैं, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिकुम, फरमाया ये जानते हैं ये जो कुरान है ये आपके रब की तरफ से नाजिल शुदा है। दिल से मान रहे हैं, दिल से तस्लीम कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम। आदमी अपने बेटे को पहचानता है तो उसको शक होता है कि मेरा बेटा नहीं है, वो मुंह से भी कह रहे हैं और वैसे भी कह रहे हैं, ईमान वाले नहीं बन रहे। याद रखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन के कितने, जो आपको नंबर अलॉट हुआ इसके कितने डिजिट्स हैं? 11। 11 डिजिट। 7। नहीं, 11 के साथ, ये बताया जी। तो 7 जो हमें अलॉट होते हैं वो 7 है। नहीं, तो सिर्फ 7 मिलाया जाए तो नंबर मिल जाएगा? आप टोटल बताएं ना। नो सर, 11 मिलाएंगे तो नंबर मिलेगा। 11 मिलाएंगे तो मिलेगा ना। वो तो आप उसको 7-4 ना करें, आप वो जो भी कंपनी का लेके 4 तो उसके अलॉट हो गए ना, आपको 4 वो अलॉट हो जाएंगे, 7 और अलॉट हो जाएंगे, 11 बनेंगे ना टोटल जी। यस सर, ऐसे ही। अच्छा, ये 0333 7 और 11 हो गए, 0321 7 और 11 हो गए, 0315 7 और 11 हो गए है, और अला अदल कियास। तो याद रखिए कि हदीस वफ्द अब्दुल कैस वाली और हदीस जिब्राइल वाली, अब मैं जरा सुना दूं आपको। अब्दुल कैस का ना वफद आया नबी अलैहिस्सलाम के पास। एक हदीस ही बुखारी में है, टाइम शॉर्ट है।
और दूसरी हदीस है जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए। अब वो जो है ना ईमान और इस्लाम की कैफियत आपने बताई, तो 11 चीजों का जिक्र किया है। वो क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह पर ईमान एक, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान दो, अल्लाह की किताबों पर ईमान तीन, अल्लाह के रसूलों पर ईमान चार, अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर पर ईमान पांच, और क़यामत के दिन पर ईमान छह। ये छह चीजें हो गई। हाँ जी, गिन ली है जी आपने छह चीजें। यस सर। अच्छा, फिर दूसरी हदीस में लाई जाए जो आपने कम अज कम बताई है, तो उसमें ये है शहादतैन, कि गवाही देना अल्लाह की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। नमाज सात, सात हो गई। नमाज कायम करना आठ हो गई। ज़कात अदा करना नौ हो गई। रमजान के रोजे रखना 10, और हज करना अगर ताकत हो 11। ये 11 चीजें बन गई, याद रख लीजिएगा। 11 आपको भूल जाए तो अपने फोन नंबर को मिला लीजिएगा, ठीक है जी। याद रहेगा जी दोनों का आपस में मुताबिकत। यस जी सर सर। इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये 11 चीजें आपने सुन ली हैं। अगर एक आदमी आपसे कहता है कि मैंने आपको कॉल की, आपने नंबर ही नहीं उठाया, आपने कहा भाई मुझे आपकी कॉल ही नहीं आई, उसने कहा आपको नंबर दिखाया तो आपके नंबर के 10 डिजिट्स लिखे हुए थे और एक उसने डायल नहीं किया था, बताइए क्या वजह है आपको कॉल नहीं मिली? एक डिजिट सर उसने कम था। डिजिट कम लिखा था इस वजह से। नहीं तो उसने 10 नहीं लिखे थे, तो 10 का क्या फायदा हुआ? यस सर, कोई जी। फायदा भी ना हुआ। अच्छा, अब इसको सर वो नंबर मिलाने सर के लिए 11, जी आप कॉल कंपैरिजन मिलाने के करिए, लिए, राब्ता कंपैरिजन करने के करिए। लिए 11, आप एक 11 आदमी पूरे आपसे नंबर कहे मिलाने। मैं 10 चीजें मानता हूँ, मेरा क़यामत पर ईमान नहीं है, बताइए ईमानदार हो जाएगा वो? कहेंगे उसको नो मुस्लिम और सर। मोमिन? नहीं, नो क्यों? वो सर। 10 तो मान रहा है वो। सर वो 10 है, जिस तरीके से हम किसी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, तो इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा सब कुछ। वो कहता है रसूलों को मैं मानता हूँ, फरिश्तों को मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ, नमाज भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा, लेकिन मैं क़यामत को नहीं मानता। अब बताइए ईमानदार है, मोमिन है, मुस्लिम है या नहीं? नो सर नहीं है। काफिर है सर। या आपने बड़ा सख्त लफ्ज बोल दिया काफिर का। ठीक, मकसद मैं आपको समझाना ही जी चाह सर, रहा हूँ। क़यामत। नहीं नहीं, बिल्कुल जी सही सर, बात। क़यामत। आपने ठीक कहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात समझने वाली है। बाज औकात आदमी 10 काम भी कर लेना तो वो 0 हो जाते हैं, सिर्फ एक ना करने की वजह से। एग्री जी? यस सर। जी सर, बिल्कुल एग्रीड। हम इसको एक और एंगल में देखते हैं। एक आदमी ने शादी हाल बुक करवाया, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ना बहुत जरूरी मसला है, हमें से अक्सर लोग इसमें उलझे हुए हैं, और वो ईमान को समझते हैं कि अमल उसमें से खारिज है। याद रखिए, ईमान से अमल खारिज कर देना ये कुरान मजीद से दूरी का नतीजा है। कि ईमान ईमान है, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे। अब देखिए, एक आदमी शादी हाल किराए पर लेता है, वो अपना खाने का भी ऑर्डर देता है, छोटा गोश्त भी पकवाता है, कुर्सियां भी लगवाता है, लेकिन वो निकाह नहीं पढ़वाता। अब बताइए सारा क्या कहलाएगा ये सब कुछ? सर फजूलियात कहलाएगी, कुछ बेमकसद चीज। क्योंकि निकाह ही नहीं पढ़वाया उसने। ठीक है, क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे यस कि जी सर। निकाह, सर। आप कहेंगे निकाह हुआ है, हालांकि निकाह सिर्फ 2 मिनट का ही है आजकल। कि उसने मौलाना साहब नो। ने आना, उसने 2-3 आयतें पढ़नी है, उसके बाद उसने कहना है कबूल है, उसने कहा कबूल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। 2 मिनट के बाद निकाह हाँ चला जाएगा, और आप अपनी मस्तियों में लगे जाएंगे, और इधर उधर अच्छा। वो 2 मिनट अगर ना हो तो निकाह निकाह नहीं रहता। याद रखिए, 11 चीजों से ईमान का एक जर्रा बनता है। अगर ये 11 चीजों में से एक चीज भी गायब है तो ईमान का जर्रा भी बंदे के पास नहीं है। ये है ईमान की कैफियत, याद रहेगी जी। यस सर इंशाल्लाह। ये 11 चीजें आप गिन लें, हदीस जिब्राइल से भी ले लें और हदीस वफ़द अब्दुल कैस से भी ले लें, तो इस्लाम और ईमान के लिए जरूरी है ये 11 चीजें कम अज कम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान की शाखें 70 से ज्यादा, 80 से कम, 70 और 80 के दरमियान है, मोर देन 70 लेस देन 80। और उसमें से आपने एक बताया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। और इमाम बहकी रहिमहुल्लाह ने किताब लिखी है शुआबिल ईमान, ईमान के शोबे, द डिपार्टमेंट्स ऑफ फेथ। जिस तरह a university has so many departments, फिर departments have got so many sub departments। बिल्कुल ऐसे ही है कि ईमान के 70 से ज्यादा, 80 से कम डिपार्टमेंट, जिसमें 11 तो कम अज कम आप में होने चाहिए, तब आपके पास एक ढांचा जर्रा बनेगा।
تو ہم کیا والا ہم بلا کے کہتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہے 10 کلو 20 کلو 40 کلو 100 کلو، حالانکہ ایک ذرے کے لیے کم از کم 11 چیزیں ہونا ضروری ہے. یہ بڑی اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا کائنڈلی سمجھیے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جی ہر راستے سے چیزیں ہٹا دینا، چھینک کا جواب دے دینا، کسی آدمی کی مدد کر دینا، بیمار کی بیمار کرسی کرنا، جنازے کے ساتھ چلے جانا، یہ سارے کے سارے نیکیوں کے وہ شاخیں ہیں. جتنی زیادہ آپ نیکیوں کی شاخیں بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کا ایمان پختہ پیارا خوبصورت ہوتا جائے. ایگری جی؟ Yes, sir. جی سر. یہ بہت اہم سبق ہے، اس لیے میں یہاں تھوڑا سا نا آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں فتنے بہت زیادہ. نمبر 2 آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ایمان اس چیز سے بنتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں دنیاوی طور پر دیکھیے کتنا بڑا سامان ہے کاسمیٹکس کا، خاص طور پر خواتین کا اور مردوں کا بھی، کہ جو جس پہ کروڑوں نہیں اربوں، پتہ نہیں اربوں سے بھی زیادہ خربوں کی سرمایہ کاری ہوتی ہے. ایگری جی؟ Yes, sir. Agree. اور جب ایک آدمی اپنے ناخن پر نیل پالش لگا کر سمجھتا ہے کہ میرے ناخن اب زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، تو اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ایمان والی چیزیں بھی وہ بڑھائے گا نا تو اس کا ایمان مزید خوبصورت ہو جائے گا. ایگری جی؟ Yes, sir. ایسے ہی ہے. آگے دیکھیں ہمارے، میں تو آبزرویشن بہت زیادہ کرتا ہوں، خواتین نے اور مردوں نے دونوں نے لینز لگائے ہوتے ہیں. آنکھیں ٹھیک ہیں، اس شادی پہ فلانا لینز، اگلے نکاح پہ فلانا لینز، تاکہ اس وقت میں سبز آنکھوں والا نظر آؤں، اگلے نکاح میں نیلی والا نظر آؤں. اب بندہ پوچھے اس سے کہ یہ جو خوبصورتی کا معیار جو آپ نے بنا لیا ہے، اس کو کبھی اپنے ایمان پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ میں ایمان کو بڑھاؤں. ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ وہ 70 سے زیادہ 80 سے زیادہ 80 سے کم چیزیں ڈھونڈیں آپ اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جتنی زیادہ عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا، تقلب کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی کہ اوپر نیچے ہونے کو. جس طرح آپ کباب دیکھتے ہیں تو جب اس کو سیخوں پہ لگا کے باربیکیو کیا جاتا ہے تو کبھی سیخ اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنا چہرہ اوپر نیچے کرتے تھے آسمان کی طرف، اور اس سے دلیل ملتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے. قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا اٹھنا فی السماء آسمان. اس سماعی مرکبے کی جاری ہے. تو فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو نا پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں بار بار آسمان کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم تبدیل کر دیں گے، پلٹ دیں گے اس قبلے کی طرف، آپ کو متوجہ کر دیں گے. ترضاها جس سے آپ خوش ہو جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کتنی بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ بنا دیا جو آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بلکہ تمام امتوں کا قبلہ تھا. فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. تو آپ بخاری کی جو حدیث ہے نا 4486 اس کو آپ پڑھ لیجئے. اس کے مطابق ایک عصر کی نماز وہ پہلی نماز تھی جو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی تحویل قبلہ کے بعد. اور جو آپ میں سے گئے ہوئے ہیں سعودیہ انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر ایک مجلس ہے مجلس قبلتین. اس میں یہ ہے کہ جی لوگ نماز پڑھ رہے تھے قباء میں صبح کی نماز، ان کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی قرآن نازل ہوا ہے اور قبلہ تبدیل ہو گیا، تو لہٰذا انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں اپنا قبلہ جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ شام کی بجائے یعنی کہ بیت المقدس کی بجائے انہوں نے کعبے کی طرف کر لیا. یہ 4490 حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے اصل حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی کہ سفر میں ہے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کشتی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالت جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، تم تو ادھر نماز پڑھ لینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ آ گیا جی وہی جو پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو. بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ، یقیناً وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن حق ہے. یہ کون لوگوں کی بات کر رہا ہے اللہ؟ یہود و نصارہ کی، جنہیں کتاب دی گئی ہے. تو ایمان والے وہ پھر بھی نہیں بن رہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اس کے باوجود ایمان والے اس لیے نہیں بن رہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ان اعمال سے مزین نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے طلب کیے تھے. تو ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں موجود ہیں، تورات میں بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہیں، بائبل میں بہت ساری پیش گوئیاں موجود ہیں. اگر آپ نے بائبل برناباس کی پڑھی ہو تو برناباس کی جو بائبل ہے وہ مصدقہ ہے، لیکن اس کو یہ عیسائی سے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری بشارتیں ہیں.
تو बरनबास को इन्होंने ना 4 गॉस्पेल्स में शामिल नहीं किया, यूहन्ना, मरकस व मैथ्यू वगैरह में, लूका में, उसको अलग ही रखते हैं, हालांकि वो ऐन कुरान मजीद के मुताबिक है। तो फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है उन तमाम कामों से जो ये कर रहे हैं। यहाँ तक ही हम आज सबक रखेंगे, क्योंकि ये सबक थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ हमें थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, इसमें काफी सारी डेप्थ है। तो इंशाल्लाह ये 144 तक आपका आज का सबक है।